Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 2 बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 6 मेमोरी का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to study section 6.2 which is stages of memory. Psychologists have discovered that memory is not a single or unitary system. It has more than one distinct system. In other words, there are more than one type of memory. According to the most acceptable model of memory, there are three major systems of memory: sensory memory, short-term memory (STM) and long-term memory (LTM). Information moves successively through these three systems if attention is given to the material. If attention, focused awareness is not given, information does not move further into the system. साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है कि जो मेमोरी है वो सिंगल या यूनिटरी सिस्टम नहीं है, ये एक डिस्टिंक्ट सिस्टम से ज़्यादा है। अगर दूसरे वर्ड में हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो हम लोगों के पास वन टाइप ऑफ मेमोरी से ज़्यादा हम लोग के पास मेमोरी है। और ज़्यादातर जो एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ मेमोरी है उसके अनुसार हमारे पास थ्री मेजर सिस्टम्स है मेमोरी के: एक सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको बोलते हैं एसटीएम, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी एलटीएम, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसिवली मूव करता है इन थ्री सिस्टम से अगर अटेंशन अगर मटेरियल पे ज़्यादा दिया जाए। अगर अटेंशन जो फोकस्ड अवेयरनेस है वो नहीं दिया जाए तो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव नहीं करेगा। Figure 6.1 stages of memory, which shows sensory input, sensory memory, which is STM first stage, then LTM second stage, which is also known as rehearsal loop. Sensory memory. Hold any object about 12 inches in front of you. Look at it steadily for a while. Close your eyes and notice how long the clear image of that object lasts. A clear visual image of any object will last in sensory memory for about half a second after the stimulus is removed. Sensory memory holds representations of sensory input for very brief periods of time. Depending upon the modality involved, there are different sensory registers for each of these senses. आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सामने 12 इंचेस की डिस्टेंस पे आप होल्ड करो, उसके बाद उसको कुछ देर तक लगातार देखते रहो, उसके बाद अपनी आँखों को बंद कर लो और आप ये देखो कि आप कितने देर तक वो जो इमेज है उसका जो इमेज जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आपके आँखों के सामने है। एक जो क्लियर विजुअल इमेज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंसरी मेमोरी में वो हाफ अ सेकेंड तक रहता है जब स्टिमुलस को रिमूव किया जाता है। सेंसरी मेमोरी उस रिप्रेजेंटेशन को होल्ड करता है, उसके बाद सेंसरी इनपुट जो है उसको बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपेंड किस पे करता है, मोडालिटी इन्वॉल्व पे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो सेंसरी रजिस्टर्स के डिफरेंट सेंसेस को। शॉर्ट टर्म मेमोरी STM. Look up for a moment and note what attracts your visual attention. Try to identify the sounds and sensations that you are experiencing now. What you have identified is the content of short-term memory or STM. It holds relatively small amounts of information for brief periods of time, as well as 30 seconds or less. This is the memory system we use when we look up the phone number and dial it. If we are connected on the first instance, the telephone number is forgotten. However, if we get the line engaged for some time, we keep on dialing the number, and through repeated dialing rehearsal of the telephone number, we push it to the long-term memory LTM storage. However, it has been found that short-term storage is more than a passive holding area. Example, holding a telephone number. On the contrary, it involves active processing of information. This finding has led psychologists to use the term working memory. It means that something active goes on during the short-term memory. Attempt activity first to understand the working of STM. शॉर्ट टर्म मेमोरी, आप एक मोमेंट को देखो जिसमें आप नोट करो क्या चीज़ जो है आपका विजुअल अटेंशन जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस साउंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, जो सेंसेशन से जो आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको आप समझने की कोशिश करो।
आपने क्या आइडेंटिफाई किया, शॉर्ट टर्म मेमोरी और एसटीएम। ये रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है यूजुअली 30 सेकेंड्स और उससे भी कम के लिए। ये जो मेमोरी सिस्टम्स है जिसको हम लोग फ़ोन नंबर देखते हैं और जब उसको हम लोग डायल करते हैं, अगर हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट आंसर जो टेलीफोन नंबर है वो हम लोग भूल चुके हैं। हाउएवर अगर आप लाइन इंगेज रहे कुछ टाइम तक के लिए और आप उस नंबर को बार बार डायल करते रहो, मीन्स जब वो जो आप नंबर डायल कर रहे हो और सामने से लाइन इंगेज आ रहा है तो आप उस नंबर को डायल करते रहो, और ये जो रिपीटेड डायलिंग रिहर्सल आप करते रहो टेलीफोन नंबर का, तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी एलटीएम स्टोरेज। और ये भी देखा गया है कि जो शॉर्ट टर्म स्टोरेज है वो मोर देन पासिव होल्डिंग एरिया है, एग्जांपल जो होल्डिंग अ टेलीफोन नंबर। इस कॉन्ट्रेरी में क्या इन्वॉल्व रहता है, एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो साइकोलॉजिस्ट है वो इस मेमोरी पे वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स कुछ तो एक्टिव रहता है शॉर्ट टर्म मेमोरी के दौरान, और आप इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझने के लिए, एसटीएम को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक्टिविटी फर्स्ट करो। Working of short-term memory, STM read out aloud the following sequence of numbers to a friend and ask him or her to immediately write in the order the numbers that were spoken out aloud. After each set, read the number set of numbers and so on. Note that this series begins with 3 digits and decreases by 1 digit each time. How many digits can your friend recall? Probably your friend will recall up to 72 digits. तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको आप देखने के लिए क्या करो, जो फॉलोइंग सीक्वेंस है उसको आप अपने फ्रेंड से बोलो कि इमीडिएटली उसको ऑर्डर में लिखते जाए जो आप बोल रहे हो, और हर एक सीट के बाद जो नंबर है वो बढ़ाते जाओ। ठीक है, जैसे 3 डिजिट है उसके बाद 4 डिजिट, उसके बाद 5 डिजिट। जो आपके फ्रेंड है उनको बोलो क्या आप उस उन्हें वो जो नंबर डिजिट है क्या वो याद है, प्रोबेबली जो आपका फ्रेंड है वो सात में से सात या फिर दो नंबर या कुछ ही नंबर को याद रखा होगा। STM has a limited capacity to hold information. In general, it holds about 5 to 9 units. The magic number 7 to information at one go. If the number of units goes higher, new information does places or writes over the existing units. Thus, into the example given earlier, it is easy to remember a telephone number consisting of 7 to 9 digits. If more information is added, we lose at least part of the phone number. However, this limitation in capacity can be effectively expanded by a process known as chunking. That is, several units of meaningful information are packed into one chunk. For example, the number 194720021941 12 digits can easily remembered if the 12 digits are chunked into 3 units: 1947, 2002, 1941, all referring to calendar years. STM का एक लिमिटेड कैपेसिटी है वो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए। जनरली ये 5 to 9 यूनिट्स जिसे मैजिक नंबर बोलते हैं वो एक साथ इन्फॉर्मेशन को रख सकता है। अगर जो नंबर है उसका जो यूनिट्स है वो हायर जाएगा तो जो न्यू नंबर है उसको डिस्प्लेस कर देगा या फिर एग्जिस्टिंग नंबर के ऊपर ये चढ़ा देगा। ऐसा जो एग्जाम्पल है जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो टेलीफोन नंबर था उसको हम लोगों ने याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, जो 7 से 9 डिजिट ही मुश्किल से याद हुए होंगे। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड किया जाए तो हम लोग कुछ पार्ट्स को लूज़ कर जाएंगे फ़ोन नंबर के, और इसके जो लिमिटेशन कैपेसिटी है वो एक इफेक्टिवली एक्सपेंड किया जाता है एक प्रोसेस के द्वारा जिसको बोलते हैं चंकिंग, मीन्स पीस करना सेवरल यूनिट्स ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। इसमें जो है उसको एक चंक में कैसे करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है जो कि 12 डिजिट का है, इसको ईजिली याद किया जा सकता है, बट हाउ, थ्रू दी हेल्प ऑफ चंक। ये 3 यूनिट्स, जैसे कि यहाँ पे जो नंबर है उसको हम लोगों ने 1947, 2002, 1941 में कन्वर्ट किया, और जितने भी है ये नंबर वो कैलेंडर ईयर से है। पहले तो हमें ये नंबर याद करना थोड़ा मुश्किल लगा, जैसे ही हम लोगों ने कैलेंडर ईयर से इस नंबर को याद करने की कोशिश की ये नंबर हमें याद हो गया। Long term memory, LTM. It refers to the memory system for the retention of large amounts of information for long periods of time. It is the memory system that permits us to remember events that happened many years ago, yesterday, last year, and so on. It is the long term memory that allows us to remember factual information, making it possible for us to learn different subjects, appear for examinations, and communicate with others. It brings continuity and meaning to our life. When we pay attention to a piece of information and engage in active rehearsal, the material is stored in the long term memory LTM.
Information in the sensory memory enters short-term memory where it becomes the focus of our attention. If we do not pay attention to the incoming sensory information, the material fades and quickly disappears. We tend to pay attention to certain information and not to the other. Paying attention to certain aspects of our world is what we call selective attention. The information from STM is often rehearsed by us. This rehearsal helps the transfer of that information from STM to LTM. जो LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो रेफर करता है मेमोरी सिस्टम के उस रिटेंशन में जहाँ पे लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है. ये एक ऐसा मेमोरी सिस्टम है जो कि हम लोगों को परमिट करता है किसी भी इवेंट्स को जो कि बहुत ही साल पहले हुआ हो, कल हुआ हो या लास्ट ईयर हुआ हो या फिर कभी भी हो, उसको याद करने में हमें हेल्प करता है. ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो हम लोगों को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद करने में मदद करता है जो कि रिलेटेड होता है डिफरेंट सब्जेक्ट से. आप किसी भी एग्जामिनेशन में अपेयर करते हो और आप जो भी याद रखते हो वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी हेल्प करता है उस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए. और आप अगर किसी से कम्युनिकेट करते हो वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी की वजह से करते हो. और LTM की वजह से आपका जो लाइफ है वो मीनिंगफुल हो और उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है. जब आप अटेंशन देते हो किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे और इंगेज हो जाते हो एक्टिव रिहर्सल के, तो जो मटेरियल है वो आपके LTM में स्टोर हो जाता है. ये जो इन्फॉर्मेशन है सेंसरी मेमोरी का वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को ज़्यादा ना दे करके फोकस किस पे करता है, हमारे अटेंशन को LTM पे. अगर हम लोग अटेंशन देते किसी इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन पे तो जो मटेरियल फेड्स है वो जो भी मटेरियल है वो फेड्स हो जाता है और क्विकली डिसअपियर हो जाता है. और जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन पे अटेंशन देते हैं और दूसरी चीज़ों पे अटेंशन नहीं देते, मीन्स जो हमारे लिए ज़रूरी है हम उस पर जब ध्यान दे रहे हैं और दूसरी किसी भी चीज़ पे ध्यान ना दे रहे हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन वो हमारे LTM में स्टोर हो जाता है और इसे ही हम लोग सिलेक्टिव अटेंशन बोलते हैं. ये जो इन्फॉर्मेशन है STM वो हमारे द्वारा रिहर्स किया जाता है और ये जो रिहर्सल है वो हमारे इन्फॉर्मेशन को STM से LTM में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. Here is activity 2. How long term memory LTM works. ये LTM कैसे वर्क करता है ये देखिए. Ask the same friend without looking at the written digits to recall the 4-digit number 1462. Even if you were to prompt your friend by saying that the number starts 1, it is highly doubtful that your friend will be able to recall even these 4 digits. Do you know as to why this happened? Because there are no rehearsal and therefore the 4-digit number was not stored in the LTM. अब आप सेम फ्रेंड से बोलिए कि जो भी रिटन डिजिट्स नंबर था उसको रिकॉल करे 4 डिजिट जैसे कि 1462. अगर आप अपने फ्रेंड को ये भी बोलिएगा कि जो नंबर था वो 1 से स्टार्ट है तो आपका जो फ्रेंड है फिर भी याद नहीं रखेगा कि जो नंबर था वो 1462 था. ऐसा क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड ने उस नंबर को रिहर्स नहीं किया, इसलिए वो जो नंबर है वो LTM में स्टोर नहीं हुआ. नेचर ऑफ 3 सिस्टम्स ऑफ मेमोरी. यहाँ पे टेबल 6.1 दिया हुआ है जिसमें आपको 3 सिस्टम्स ऑफ मेमोरी के नेचर दिए गए हैं. Now here is in text question 6.1. Try to solve both of this question. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा. तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.